सभी को राम राम। जय श्री महाकाल। This is Renu Mangtani from the platform of Ankakshar Miracles, which is the Institute of Occult Sciences, Spiritual Activities and Research, where we teach you numerology and we provide you the paid consultations in the fields of career, health, growth, relationships, your transformed vehicle number, we can say, and mobile number. So for these paid consultations, you can reach out to us on, you can Google us also, Ankakshar Miracles. Our Facebook page name is also Ankakshar Miracles, YouTube channel. So, and also I'll share you the Instagram IDs. My ID is truth underscore off underscore life 82. My husband's is Abhishek Chitransh, who is the founder and CEO of Ankakshar Miracles and expert master numerologist. And today we have Kiran Yadav platform of Ankakshar Miracles as a guest. She is one amongst the 108 co-authors of both these anthology books titled as My Marriage Bliss versus Curse and Seven Lee of Life. So hello Kiranji, how are you doing today? नमस्कार मैम। बहुत बहुत शुक्रिया आपका और अभिषेक जी का मुझे यहाँ पे इस प्लेटफॉर्म में Ma'am, your इनवाइट करने voice is not audible. Could you just check it once? के। यस मैम। Yes, now it's good. नमस्कार। नमस्कार मैम, आपको और अभिषेक सर को और सभी को ऑथर्स को भी जिन्होंने आपने मुझे यहाँ पे इनवाइट किया, इसके लिए मैं आपकी बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ इस प्लेटफॉर्म पे आने के लिए। और जैसा कि आप जानते हैं कि हम 108 ऑथर्स जिसमें से मैं एक हूँ और मुझे बहुत खुशी है कि मैं इस प्लेटफॉर्म का पार्ट हूँ। Thank you so much, ma'am. And one compliment for you. You have really nice hair, and along with that, your smile is very beautiful. So, थैंक yes. यू, थैंक यू। Thank you. So before starting this beautiful conversation और बहुत ही शायराना कन्वर्सेशन है, मैं पहले ही सबको बता देती हूँ, तो अंत तक जुड़े रहिएगा अगर आपको ये शायरानी कन्वर्सेशन जो है मिस नहीं करनी है। तो चलिए आज ब्लेसिंग्स लेते हैं गॉड से और फिर स्टार्ट करते हैं। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्. So now I'll start the screen sharing. We will know something more about Kiranji. So let me know, ma'am, whether you're able to see the screen. यस। She had been an assistant manager as an HR, educationist, content writer, trainer and mentor, businesswoman. And this is a beautiful picture holding these beautiful books. And this is a small quote that we have taken out from an article. Marriage is a melodious journey of compromise and forgiveness, of unconditional love and support. And this is the beautiful cover of Seven Lee of Life, Learning, Earning, and Expectation. This book has more than 2000 points, and you will learn a lot from it, from the life experiences. सबके अलग अलग experiences हैं इसमें। और ये है कवर माई मैरिज ब्लिस वर्सेस कर्स का। And now I'll share with you all the cover of mobile addiction, which is actually a need of the hour topic, and that is written by me, authored by me and my husband Abhishek Chitransh. And this is the 21 simple techniques to remove or reduce mobile addiction in children or students and adults. All these books are available on Amazon and Flipkart. And now I'll share with you all about our current anthology, which is a family puzzle, united or divided, roots to wings for passing bonds across generations. Again, बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक और ऐसा टॉपिक जिसपे कोई भी कह सकते हैं मिस नहीं करेगा लिखना, बिकॉज वट एवर टुडे यू आर इन योर लाइफ इज बिकॉज ऑफ योर फैमिली. सो राइटिंग अ पीस ऑफ आर्टिकल एंड आप लोग दिखा सकते हो अपने पेरेंट्स को कि आप लोग कितना प्राउड फील करते हो बीइंग इन द फैमिली, एंड व्हाट ऑल रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज दैट यू ऑल हैव इन योर फैमिली. सी बिकॉज जो भी आया है, हर कोई अपना अपना एक रोल लेके आया है इस लाइफ में, इन दिस ह्यूमन बर्थ. So, what all you will get in this: hard copy of the book, hard copy of publishing certificate, your elite portfolio,
पॉडकास्ट और ऑनलाइन इंटरव्यू, जैसे आज अभी हमारा इंटरव्यू हो रहा है किरण जी के साथ, वैसे ही हम लोग बातें करेंगे बहुत सारी। ट्रॉफी एंड मेडल ऑफ को ऑथरशिप, योर मीडिया कवरेज, हार्ड कॉपी ऑफ द बुक मोबाइल एडिक्शन दैट इज सिग्नेचर्ड बाय ऑथर्स टोटली फ्री, subscription of Ankakshar Miracles magazine, which is the first monthly e-magazine based on numerology. Also, you will get a chance to get featured in it, and surprise goodies and much more. और ये जो आप फोटोज देख रहे हैं, ये हमारे हैप्पी को ऑथर्स हैं। हमारी बुक आई थी 24 में। इट वाज वुमेन एम्पावरमेंट एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट्स। दिस वाज एन एंथोलॉजी विद 51 को ऑथर्स। और हाल ही में आई माई मैरिज ब्लिस वर्सेस कर्स एंड सेवन ली ऑफ लाइफ। एंड राइट नाउ वी आर वर्किंग ऑन फैमिली, and I'm happy to share with you all that all these books have been placed in University of Mumbai, University of Pune, and National Book Trust, and we have also got the appreciation letters for the same. So आप जो हैं यूनिवर्सिटीज में प्लेस हो गए हैं सारे के सारे 108 ऑथर्स। ना ही मैं और ना ही मेरे हस्बैंड, केवल आप सब लोगों के थॉट्स भी वहीं पे प्लेस हो गए हैं और हमेशा रहेंगे। आज आप ही नहीं, आगे की जनरेशन्स टू जनरेशन्स आपके थॉट्स को पढ़ेंगी, एंड यू नेवर नो कि कब रेनू जी का आर्टिकल, कब किरण जी का आर्टिकल, कब किसका आर्टिकल किसकी लाइफ को ट्रांसफॉर्म कर जाए। सो यू ऑल हैव ऑलरेडी डन अ लॉट फॉर द सोसाइटी बाय जस्ट राइटिंग द 2 पेजेस ऑफ आर्टिकल। सो आप सोच सकते हैं कि आप कितना सोसाइटी को ट्रांसफॉर्म करने वाला आपने काम किया है। बिकॉज आप रहें या ना रहें, बट किताबें जरूर रहेंगी। तो चलिए ज्यादा टाइम ना लेते हुए किरण जी का स्टार्ट करते हैं। बहुत ही खूबसूरत शुरुआत है आपके आर्टिकल की, और मैं इस स्टार्टिंग को यहाँ सभी के साथ बिल्कुल शेयर करूंगी। तो अर्ज किया है, 2 पन्नों में कैसे लिख दूं मैं तेरी मेरी ये कहानी, जिसे सिर्फ मैं जानूं और तू जाने दिलबर जानी। मैम, आपने बहुत ही खूब बयां किया है शादी के इस अनमोल रिश्ते को। तो आप बताइए, आपकी लव मैरिज है या अरेंज मैरिज? और हाँ, कितने साल हो गए? जानती हूँ, वेरी पर्सनल क्वेश्चन, but still your way of putting this beautiful relationship in these 2 lines didn't make me stop you to ask this question. Over to you. 16 years we both are together और और मेरी लव मैरिज है। It's been तो how इन many 16 years? साल से अलग मैम 2 साल के रिलेशनशिप के बाद ये 16 ईयर की मैरिज है। इन टोटल वी बोथ वर लाइक 18 इयर्स हम दोनों ने एक साथ निकाले हैं। और जैसे कि मैंने मेरे आर्टिकल में आपने ये जो मेरी खूबसूरत लाइनें बयां की, 2 पन्नों में कैसे लिख दूं मैं तेरी मेरी ये प्रेम कहानी, जिसे सिर्फ तू जाने और मैं जानू दिल भर जानी। मैम जब पेन हाथ में आया तो समझ में नहीं आया कहाँ से शुरू करूं, क्योंकि इतना कुछ था बताने को, बहुत सारा दर्द, बहुत सारा प्यार। और ये जो 16 इयर्स हम दोनों ने शादी के बाद के जो निकाले हैं, इसमें इतने उतार चढ़ाव, अच्छे बुरे दिन, परिवार सब हमने बनाया है। तो उस बीच में जो भी एक्सपीरियंस था वो 2 पन्नों में लिख पाना अपने आप में ही बहुत मुश्किल था। और जैसे कि मैंने मेरे आर्टिकल के शुरुआत में कहा कि कोई भी शादी अच्छी या बुरी नहीं होती, उसे आप 2 लोग अपनी समझ और अपने समर्पण से बनाते हैं। तो एक तरीके से ये कहानी थी मेरे और मेरे पार्टनर के समर्पण की, प्यार की, और जहाँ पे हमने बहुत कुछ कॉम्प्रोमाइज भी किया, अपनी ईगो, अपने सपनों को साइड में रख के एक दूसरे के लिए जिए। तो वो सब चीजें 2 पन्नों में एक्सप्लेन करना इट्स नॉट पॉसिबल। तो कलम उठाते ही सबसे पहले ये 2 लाइनें दिमाग में आई और मुझे लगा बस लिख दूं। दैट्स रियली नाइस मैम। और जैसे मैम ने कलम उठने की बात की, तो कलम जब हाथ में है तो हम नहीं रुकेंगे, और यही हुआ। और अर्ज फिर से किया है कि दर्द सीने में था कुछ ऐसा, दर्द सीने में था कुछ ऐसा, कि ना आंखों से बहा और ना होठों से कहा। क्या हो, मुझे तो मजा आ गया आर्टिकल पढ़ते पढ़ते। सो मैम, हाउ डू यू सी फाइट्स इन अ मैरिज? आर द फाइट्स नेसेसरी in marriage, and can you please share that key to a blissful marriage to the married couples out here, along with those 2 beautiful lines which you have mentioned in the article? हम जिन लोगों ने आर्टिकल पढ़ा है, जैसे कि आपने भी पढ़ा होगा, तो Ma'am, again the voice. मैम जिन लोगों ने आर्टिकल पढ़ा है और जैसे कि आपने भी पढ़ा होगा, तो आपने नोटिस किया होगा मैंने वहां बहुत खूबसूरती से बताया है कि मैं और मेरे पार्टनर जो हैं, हम दोनों ही डिफरेंट टेम्परामेंट के हैं, डिफरेंट शौक रखते हैं।
और मैं न्यूक्लियर फैमिली से बिलोंग करती हूँ, उनकी जॉइंट फैमिली थी। तो जब हम दोनों एक दूसरे के साथ लाइफ में आए तो देयर आर नॉट द थिंग कि सिर्फ प्यार ही था कि लव मैरिज इज लाइक परियों की कहानी से निकल के आप एक रियल जिंदगी में आए हो और आपको वो जीना है, जहां पे बहुत सारी चीजें थी जो बिल्कुल भी मैच नहीं करती थी। तो ऐसा नहीं था कि झगड़े किसी के घर में नहीं होते, सबके घर में होते हैं, मेरे साथ भी हुए हैं। हम सब ने, आपने भी किए होंगे, छोटे छोटे प्यार भरे झगड़े भी होते हैं कभी कभी, वो छोटी सी बिना किसी रीजन के आपको पता भी नहीं चलता वो बड़े हो जाते हैं। लेकिन द पॉइंट इज कि आप उनको कैसे लेते हो, आप उन उन चीजों को कैसे फेस करते हो। कुछ रूल्स होने चाहिए, मुझे लगता है एक अच्छी शादी में कुछ रूल्स होने चाहिए, जैसे कि मेरे रूल्स कुछ ऐसे हैं कि मैं चाहे कितना ही झगड़ लूं, कितना ही कुछ कह लूं, लेकिन मुझे सुबह की चाय उनके साथ ही पीनी, रात को वो कभी भी मुझे मनाए बिना नहीं सोते। मैंने आज के बच्चों में देखा है, दे वर लाइक कि हमें 3 डेज हो गए हैं बात किए हुए, 4 डेज हो गए हैं बात किए हुए, पर ऐसा नहीं होना चाहिए। मुझे लगता है कि अच्छी शादी वही है, एक अच्छी अंडरस्टैंडिंग वही है, जब आप अपनी ईगो और अपनी बाकी चीजों को साइड में रख के अपने पार्टनर को समझते हुए, उसका साथ देते हुए आगे बढ़ते दैट्स ग्रेट, मतलब अंडरस्टैंडिंग हो, हैं। कम्युनिकेशन हाँ होना चाहिए, और फाइट्स मैम, तो। शादी शादी इज द पॉइंट ऑफ इक्वालिटी, इक्वालिटी, ट्रस्ट, और सबसे बड़ी बात है कॉम्प्रोमाइज, एक दूसरे के लिए आप कितना कर सकते हो, कितना एक दूसरे को अंडरस्टैंड करते हुए कि आपके पार्टनर को, आपको भी फील, जो कॉम्प्रोमाइज कर रहा है उसके पार्टनर को समझ में आना चाहिए कि मेरा पार्टनर मेरे लिए ये कर रहा है, वैल्यू इट। तो वो इक्वालिटी जहां आ जाती है, वो वैल्यू जहां आ जाती है, तो आप निभा जाते हो। बिल्कुल, और फाइट्स जब होती है तो कहते हैं कि प्यार और बढ़ता है, बिकॉज देयर यू रियलाइज कि अगर एक पार्टनर ज्यादा गुस्सा कर रहा है तो दूसरे को मनाना आना चाहिए। अगर दोनों ही ईगो वाले हैं और दोनों ही गुस्से वाले हैं तो वहां बात बिगड़ेगी। सो वन हैज टू, एक मनाने वाला होना चाहिए और एक हक से झगड़ा करने वाला भी होना चाहिए। नाम देखो, शादी में दो लोग होते हैं जिसमें एक बंदा वॉइस मैम, वॉइस। मैम, जैसा कि मैंने बताया कि शादी में दो लोग होते हैं और जिसमें से एक बंदा तो डोमिनेटिंग होता ही है, इधर द गर्ल और द बॉय। तो वो खूबसूरती होती है इस रिश्ते की कि आप अपने डोमिनेटिंग पार्टनर को कैसे संभाल सकते हो। यही तो खूबसूरती है शादी की। बिल्कुल। और आगे बढ़ते हैं, जैसे ही मैंने पिछले क्वेश्चन में कहा था कि कलम तो अभी चली है और रुकेगी नहीं, तो आइए अर्ज करते हैं एक और आर्टिकल की एंडिंग में। इतने शिद्दत से हमने तुमको सजाया, इतनी शिद्दत से हमने तुमको सजाया कि जालिम खुद सजना संवरना भूल गए। भूल गए। इसको रीड करते ही मेरे दिमाग में क्वेश्चन आता है कि मैम, आर द मैरिजेस डिस्टाइन्ड इन हेवन? मैम, हेवन तो मैं नहीं कह सकती कि क्योंकि मुझे नहीं पता वहां पे बनी या नहीं बनी है, पर हाँ, धरती पे जो दो लोग हैं जो मिलकर इसे बना रहे हैं, वो इसे स्वर्ग जरूर बना सकते हैं अपनी समझ और अपने समर्पण के साथ। एक रिश्ते में जब प्यार के साथ साथ दर्द जब दोनों मिल रहे होते हैं, उस टाइम पे आप अपने आप तो खुद को संभाल ही रहे हो, साथ में अपने पार्टनर को कितना समझ रहे हो। आपका पार्टनर अगर आपसे कुछ कह भी रहा है या किसी रीजन की वजह से कुछ चीजें हैं भी, तो उस टाइम पे आप ये सोचने की बजाय कि आप वो मुझे ऐसे बोल रहा है, उस चीज को ना समझते हुए इस चीज को समझो कि वो आया कहाँ से, वो पॉइंट आया कहाँ से, उसकी जड़ क्या है, वाई इज ही इन पेन। और जब कोई इंसान आपसे प्यार करता है, आप और आपको अपना समझता है, तो वो अपना पेन भी आपके सामने ही निकाल पाता है। तो द वे इज कि वो पेन समझना बहुत जरूरी है उस रिश्ते में। और शादी का जो मैंने, ये जो मेरा आर्टिकल का लास्ट पॉइंट है, इसमें मैं ये समझाना चाह रही थी कि इट्स शादी, इट्स नॉट लाइक लाइक बिटवीन टू पीपल, ये दो लोगों का मेल नहीं है, ये पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटीज के साथ आता है। जब आप इस रिस्पॉन्सिबिलिटी में घुसते हो तो यू विल बी डॉटर इन लॉ, साथ में बीवी तो बन ही रहे हो, डॉटर इन लॉ भी हो, आप किसी की सिस्टर इन लॉ भी बन रहे हो, साथ में आप थोड़े दिनों बाद माँ भी बनते हो, तो बहुत सारी जिम्मेदारियों के साथ आता है। उन जिम्मेदारियों को निभाते निभाते एज अ वुमेन
कब हम अपने आप को भूल जाते हैं, कब हम अपने सपनों को भूल जाते हैं, दैट्स द पॉइंट आई वांट टू एक्सप्लेन इन दिस। बिल्कुल बिल्कुल। और जैसे आपने कहा कि खुद को भूल जाते हैं, तो खुद को भी नहीं भूलना है, सेल्फ लव भी रखना है, तो सेल्फ लव बहुत जरूरी है, बहुत बहुत जरूरी। जरूरी। बिल्कुल और यही एक रीजन है कि जब आपको लगता है कि आप जिंदगी में आगे बढ़ रहे हो, अच्छाई के साथ आगे बढ़ रहे हो, तो अपने लिए वक्त निकालना बहुत जरूरी है। बिल्कुल बिल्कुल। सो व्हाट एन अगेन, ये तो माय मैरिज का धमाकेदार आर्टिकल रहा, और ये शायरीज जो है ना, मुझे मतलब एकदम पढ़ के एकदम मजा आ गया, और मैं मतलब आर्टिकल को मैंने काफी बार रीड किया। और वैसे ही हुआ, 7 ली ऑफ लाइफ का आर्टिकल जब देखा तो वहां पे भी ऐसा ही कुछ मजेदार सा मिला, एंड इट्स ट्रूली इम्प्रेसिव, एंड आई वुड नॉट मिस टू रीड इट out for you all. A genuine individual is one who battles with the circumstances and makes his life effective and works on the existence of himself as well as individuals connected with him. लाइफ का कह सकते हैं कि ये रियल लाइफ एग्जाम्पल मैम ने इन कुछ ही लाइंस में लिखा है। सो मैम, व्हाट मैसेज यू वुड लाइक टू शेयर फ्रॉम योर learnings, earnings, and expectations so as to how one can transform their life with your very deep thoughts? Over to you, ma'am. मैम, मैं सबसे पहले आपको बताना चाहूंगी कि जो लाइनें हैं, ये लिखी मैंने जरूर हैं, लेकिन ये मेरी मदर की लाइनें हैं। जो जब मैं बहुत छोटी थी, तो कुछ मेरे आसपास कुछ सरकमटेंस ऐसे हुए कि मैंने मेरी मदर से एक क्वेश्चन किया किसी के बारे में कि व्हाई ही डू दैट। शायद उन्हें भी नहीं समझ में आया होगा, तो उन्होंने मुझे बोला, मैंने कहा व्हाई ही डू दैट, और हम इससे कैसे फाइट कर सकते थे। देन ही सेड शी सेड कि बेटा, इट्स नॉट लाइक कि ही डू दैट पर्पसली, मे बी ही वाज इन सम अनदर पेन, जो लोगों को समझ में नहीं आया। पर एक सही इंसान वही है जो गिरकर भी खड़ा हो जाए, जो हालातों से लड़े, गिरकर खड़ा हो जाए, अपने दर्द को हराते हुए उस दर्द के बारे में सोचे जो उसके साथ रहते हुए दूसरों को मिल रहा है। आप आपके रहने से अगर किसी को सुख मिलता है, किसी का दर्द कम होता है, तो वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है कंपैरेटिवली कि आपके ना होने से जो दूसरों को दर्द मिलता है। द मैसेजेस कि आपको लड़ना चाहिए अपने हालातों से, अपने सिचुएशन से। भगवान ने आपको धरती पे भेजा है, बहुत खूबसूरत इंसान को बनाया है, बहुत खूबसूरत चीज बनाई है भगवान ने, ऐसे ही नहीं बनाई है। किसी पर्पस से उन्होंने आपको यहाँ भेजा है, कुछ करने के लिए भेजा है, एंड यू हैव टू डू दैट, यू हैव टू प्रूव फॉर योर सेल्फ। जी बिल्कुल। और जैसे मैम ने बताया कि अपने हालातों से सीखो, इसका मतलब लर्न फ्रॉम लाइफ, लाइफ इज ऑल अबाउट लर्निंग। मिस्टेक्स तो होती रहेंगी, और इन्हीं मिस्टेक्स से और यही फेलियर्स जो भी आपके लाइफ में आएंगे, जो भी चैलेंजेस आएंगे, इसी से आप और सक्सेसफुल बनोगे। यही नहीं कि जब फेलियर आए कि मैंने गिव अप कर दिया, मैंने सोचा ये मेरे साथ ही क्यों होता है, वाई मी, वाई ऑलवेज रेनू। बट यही होता है कि लास्ट में, बाद में हम ही बोलते हैं कि चलो जो हुआ अच्छा ही हुआ, बिकॉज यू, आपको कुछ पता नहीं है दैट यूनिवर्स हैज ऑलरेडी डिसाइडेड, यू ऑल आर जस्ट पुटिंग द एफर्ट्स इन योर लाइफ, एंड नेवर एक्सपेक्ट, ये मत सोचो कि मैंने ये काम किया तो मुझे इसके बिहाफ में ये एफर्ट मिलेगा, ये फ्रूट मिलेगा मुझे, तो ये मत सोचो, जस्ट गो विद द फ्लो। अपने एफर्ट्स करो, डू योर बेस्ट, एंड डेफिनेटली आप लोग को बेस्ट रिजल्ट्स मिलेंगे ही अपने लाइफ में। सो लर्न फ्रॉम योर, जैसे मैम ने बताया कि अपने सर्कमस्टेंसेस से सीखो, जिस तरीके से जो भी आपके लाइफ में प्रॉब्लम्स आ रही हैं, लर्न फ्रॉम देम। सो चलिए आगे बढ़ते हैं। मैम एचआर रह चुकी हैं, शी हैज स्टार्टेड एज एन एचआर एंड शी हैज आल्सो वर्कड फॉर रेप्यूटेड एमएनसीज इन द होटल इंडस्ट्री, then also she has been at various renowned international schools. So what piece of advice you would like to share with the ones, ma'am, who are looking for the jobs? So as an HR, आपसे बेस्ट कौन राय दे पाएगा? And being a teacher, so to the students को आप क्या राय देना चाहेंगे, so that how they can prepare well in their life, because looking at this mobile addiction in these digital days, so how they can prepare in their life? So HR, as an HR, आप जो लोग जॉब के लिए जाते हैं तो किस तरीके से they have to prepare, and then as a teacher to the students? एज एन एचआर From voice. एज एन एचआर जो आने वाले स्टूडेंट्स हैं, मैं उनको
ये एडवाइस देना चाहूंगी कि एचआर इज नॉट लाइक द ह्यूमन रिसोर्स का एक कैबिन है जहाँ पे एसी में आप बैठे हो और अपने लैपटॉप या सिस्टम में आप एक 5 स्टार फैसिलिटी के साथ काम कर रहे हो। इट्स नॉट लाइक दिस। एचआर अपने आप की जो जॉब है वो अपने आप में ही एक रिस्पॉन्सिबिलिटी लेके आती है। जो हमारे हायर पोजीशन पे लोग होते हैं वो अपने लिए फाइट कर सकते हैं, लेकिन एक असली एचआर की जो जॉब है वो शुरू होती है उन लोगों के लिए जो बहुत ही स्मॉल लेवल पे काम करते हैं, बहुत ही छोटे ओहदे पे काम करते हैं। उनके लिए आप क्या कर सकते हैं बेस्ट। तो ये बहुत जरूरी होता है एज अ ह्यूमन रिसोर्स पर्सन कि आप उनके साथ कनेक्टेड रहें, आप उनके साथ जुड़े, आप उनकी प्रॉब्लम समझें, उनको सॉल्व करें। और जब आप इस लेवल पर जाकर काम करते हो तो आपके काम की भी पहचान होती है और आपकी इज्जत होती है। ह्यूमन रिसोर्स इज नॉट अ जॉब जो कि आप पैसे के लिए करते हो। दिस इज फॉर रिस्पेक्ट। ये एक बहुत रिस्पेक्टफुल जॉब है और इसे बहुत खूबसूरती से निभाना आना चाहिए। बिकॉज तो ऑफ मैं उनको यही एचआर के ऊपर जो है पूरी कंपनी की रिस्पॉन्सिबिलिटी टू द कैंडिडेट्स दैट ही और शी इज yes. चूजिंग, वेरी वाइटल रिस्पॉन्सिबिलिटी। मैम और सबसे बड़ी बात है जो छोटे लेवल पे जो बच्चे काम करते हैं, जो नए बच्चे होते हैं या पुराने भी हैं लेकिन वो बहुत छोटे लेवल पर काम कर रहे हैं, दे डोंट नो कि हाउ टू सरवाइव देयर, अपना पेन कैसे आगे पहुंचाएं, अपनी चीजें अपने जो है उनके क्वेश्चंस होते हैं वो कैसे आगे तक ले जाएं। तो एक की ह्यूमन रिसोर्स पर्सन की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि वो उनका फ्रंट फेस बन के मैनेजमेंट तक वो चीजें पहुंचाए और उनके लिए काम करे। बिल्कुल बिल्कुल मैम। एंड फॉर द स्टूडेंट्स, लाइक मैम फॉर द स्टूडेंट्स, जैसे कि एआई का जमाना है, हम बच्चों को रोक नहीं सकते टेक्नोलॉजी से दूर रहने से। लेकिन मैं यही कहना चाहूंगी कि आप यूज करो टेक्नोलॉजी, लेकिन उसको अपने राइट पाथ पे ले जाते हुए यूज करो। आप एआई का यूज कर सकते हो, फोन का जो भी आप यूज कर रहे हो। अगर आप इंस्टाग्राम और फेसबुक में ज्यादा इंटरेस्टेड हो तो आप कंटेंट बना सकते हो, उससे नई चीजें सीख सकते हो। अपने बिजनेस को कैसे डेवलप करना है आने वाले टाइम में आप वो सीख सकते हो। और अगर आप लैपटॉप यूज कर रहे हो या किसी वैसे ही कुछ भी एक्सप्लोर कर रहे हो गूगल पे, तो आप एआई चैट जीपीटी से अपने नोट्स बनवा सकते हो, आप अपनी कम्युनिकेशन में इम्प्रूवमेंट्स कर सकते हो। जस्ट कॉपी पेस्ट करना इज नॉट अ सॉल्यूशन। आप अपने आप को कैसे इम्प्रूव करते हो और वो आपकी लाइफ में कहाँ इम्प्लीमेंट हो रहा है, दैट मैटर, वो मैटर करता है। तो अपने करियर को एक अच्छा रास्ता दो और अच्छी जिंदगी के लिए प्रिपेयर हो जाओ, यही कहना चाहूंगी। ये सारी टेक्नोलॉजी यूज कर सकते हो, किरण जी का कहना है, बट यू शुड नॉट मिस यूज। यस। So, ma'am, how was your feeling when you got recognized as internationally certified published co-author and when you received the books and goodies in your hand? Can you show those beautiful books to our audience? Yes, sure, sure, ma'am. How was your feeling when you received them? This is my marriage, bliss versus curse, and this is the 7 layer of life. Wow. And मैं आपको बता नहीं सकती कि जब मेरे हाथ में आई तो मैं कितनी खुश थी। और मैं बताना चाहूंगी इस प्लेटफॉर्म पे कि जब मैंने ये लिखना शुरू किया तो मैंने कभी सोचा नहीं था कि मैं बुक लिखूंगी। मैं लिखती थी लेकिन मुझे ये नहीं पता था कि मैं इतनी खूबसूरती से लिख सकती हूँ। तो ये बिल्कुल। अपने आप में ही मेरे लिए बहुत चैलेंजिंग के साथ साथ बहुत ही एक्साइटिंग एक्सपीरियंस रहा है और मुझे मजा आ गया। एंड आई एम हैप्पी टू बी एन ऑथर और इस जर्नी का पार्ट हूँ मैं। मुझे बहुत खुशी है कि मैं उन लोगों में से हूँ जो 108 लोग हैं उनमें से मेरा भी एक नाम है। मेरे बाद भी लोग मुझे जानेंगे और कल को मेरे बच्चे के भी बच्चे अगर इस बुक को उठा के पढ़ना चाहें कि हमारी दादी के क्या रिव्यू थे तो वो देख पाएंगे। दिस इज रियली अ वेरी ग्रेट एक्सपीरियंस फॉर मी। थैंक यू मैम, थैंक्स फॉर लव लव एंड रिस्पेक्ट। एंड जिस तरीके से आपने बताया और अपने वैल्यूएबल पीस ऑफ एडवाइजेस यहाँ पे शेयर किए। एंड लास्ट क्वेश्चन टू यू मैम, हाउ वुड यू recommend to the new authors who wants to share their words, thoughts in the society through the platform of Ankakshar Miracles? मैम मैं कहना चाहूंगी जैसे कि मैंने बताया कि मैंने भी कभी नहीं सोचा था कि मैं बुक लिखूंगी और Voice again. आपने मुझे आपने मुझे एक ऐसा प्लेटफॉर्म दिया जहां से डायरेक्टली
मेरी बुक पब्लिश हुई है, मैं रिनॉन ऑथर के नाम से अब जानी जा रही हूँ इंटरनेशनली। तो मैं लोगों को यही एडवाइस दूंगी, दिस इज द राइट प्लेटफॉर्म, आप प्लीज जुड़िए और अपने सपनों को पूरा कीजिए। बहुत सारे लोग होंगे आज भी ऐसे जो लिखते होंगे और बहुत खूबसूरती से लिखते होंगे, लेकिन उन्हें ये नहीं पता है कि कैसे जुड़ना है, क्या करना है अपने थॉट्स को दुनिया के सामने लाने के लिए। तो मैं उन्हें ये बोलूंगी कि आप रेनू मैम को कभी भी कॉल कर सकते हैं, उन्होंने अपना नंबर शेयर किया है, अभिषेक सर ने शेयर किया है, और जो मेरे नोन में लोग हैं जो मुझे जानते हैं पर्सनली, वो मुझे कभी भी कॉल कर सकते हैं। मैं डेफिनेटली उनकी हेल्प करना चाहूंगी और आगे बढ़ के इस चीज में सहयोग दूंगी कि लोग जुड़े और अपने सपनों को पूरा करें। बिल्कुल मैम, थैंक यू सो मच। थैंक्स फॉर कमिंग एंड थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग एंड योर वैल्यूएबल पीस ऑफ थॉट्स एडवाइसेस। इट वाज रियली नाइस मीटिंग यू। तब तक के लिए बने रहिए, जुड़े रहिए अंकाक्षर मिराकल्स के साथ। दिस वाज रेणु मंगतानी विद किरण यादव। जल्द ही मिलेंगे अगली न्यू को ऑथर के साथ। थैंक यू मैम। थैंक यू सो मच। थैंक यू मैम।